So, hello children, how are you all? I hope you all are well there. I am Anjum Bhati Nirvan going to take your very first chapter of English literature, which is A Merry Christmas. As you can see on your screen, A Merry Christmas. तो आपको पता चल रहा होगा मैरी क्रिसमस मीन्स ये किसी फेस्टिवल से रिलेटेड चैप्टर है ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट यू ऑल टू नो मोर अबाउट दिस चैप्टर्स कैरेक्टर मीन्स इस चैप्टर में कौन कौन है ओके फर्स्ट आई वुड लाइक टू मेंशन द मदर ओके मेन रोल इज ऑफ द मदर who is Mrs. March जिनका नेम क्या होता है Mrs. March she has 4 daughters. As you can see in your very first page of the chapter, page number 2. Okay, page number 2, you can see here in very starting, the author has mentioned 4 daughters' names: Meg, Jo, Beth, and Annie March. Okay, these are 4 daughters in the chapter, and another role which we'll know about in further details, that is Hannah. Okay, Hannah was a maid of this family. Hannah कौन थी इस घर की एक सर्वेंट थी. Okay, but very attached with the family. सर्वेंट थी तो थी लेकिन attached भी बहुत थी family members के साथ. Okay, so I'm going to tell you the short summary of this chapter, which is Meg, Jo, Beth, and Annie March, who are sisters who live with their mother in Boston, Massachusetts. यानी ये कहाँ रहती थी बॉस्टन में रहती थी किसके साथ अपनी मदर के साथ बॉस्टन इज अ प्लेस इन यूएस ओके their father is away at war their father was not living with them because he is away for the war the March family is poor March family बहुत ही गरीब थी but they are a happy lot because of their warm hearts and affection for each other. They were poor, but they lived together. Why? Because of their love and affection. Here, affection meaning is love and care. Children, you also have to write the meanings, whatever I am giving you. Affection meaning love and care. This extract tells us about how they spend their Christmas morning. This extract meaning a part of a novel or a story. यानी किसी भी नोवेल या फिर स्टोरी का कोई भी छोटा सा पार्ट होना as I am going to tell you that this is the part of the story. It is not a clear story, full story. It is a part of the story. Okay, that's why the author has used the word extract. Okay, extract means a part of a novel or a story. मतलब ये स्टोरी जो है हमारी पूरी नहीं एक छोटा सा पार्ट है किसी नॉवल का. So, and what the novel, what the extract telling us that how the family, they here is used for family members. Who are the family members? Mother and her 4 daughters. Okay. So, how the mother and her 4 daughters spend their Christmas morning? कि वो Christmas morning कैसे spend करती है ये हम पता करेंगे. Okay. So, children, before starting, I would like to tell you that as you all know, when Christmas comes, there's a belief that Santa will come. आप भी वेट करते होंगे ना सेंटा का क्रिसमस पर कि सेंटा आएगा और हमें गिफ्ट्स देगा. तो as the Christians believe, ठीक है, they believe that Santa will come and give some gifts to the children. Okay. Now in the story, जो भी ऐसा ही बिलीव करती है कि जो क्या करती है कि उसे भी ऐसा लगता है कि कोई आएगा और है ना मुझे गिफ्ट देकर जाएगा. जो was the first to wake in the grey dawn of the Christmas morning. हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है घर के मेंबर की एक गर्ल्स ओके जिसका नेम क्या होता है जो was the first जो कि उठती है सुबह जल्दी से and in the grey dawn मतलब होता है in the time of morning okay and in other language we can say that it is the time the sun about to rise कि ये टाइम होता है जब सन राइज होने का टाइम होता है ओके सन जब राइज होता है तो इसका टाइम है डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द अपोजिट ऑफ डॉन इज डस्क मीनिंग होता है द टाइम ऑफ इवनिंग अर्ली इवनिंग डॉन अर्ली मॉर्निंग अब क्रिसमस मॉर्निंग यानी ये क्या होता है सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है क्रिसमस डे होता है नो स्टॉकिंग्स हंग एट द फायर प्लेस स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स जो आप पहनते हो सॉक्स तो क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते थे कि स्टॉकिंग्स बाहर ले जाकर हंग कर देते थे हंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग
यानी सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग यानी लटकाना। तो ये फायर प्लेस जो बाहर का प्लेस होता था वहां जाकर अपनी स्टॉकिंग को हैंग कर दिया करते थे। एंड फॉर अ मोमेंट शी फेल्ट एज मच डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मींस होपलेस, कि उस टाइम पर वो थोड़ी सी होपलेस हो जाती है एज ही डिड लॉन्ग अगो, जैसा कि वो पहले होती है। अब होपलेस क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत पुअर होते हैं, उनके पास कोई इतना वेराइटीज ऑफ थिंग नहीं होती है कि वो यहाँ भी यूज कर सके और वहां भी यूज कर सके। When her little sock fell down because it was so crammed with goodies, कि पहले तो क्या हुआ करता था, उसके सॉक्स जैसी वो स्टॉकिंग हैंग करती थी, क्रैम मींस फिल विद समथिंग, बहुत अच्छे तरीके से ओवरलोडेड होना या फिल होना, और गुडीज मींस गिफ्ट्स, कि पहले तो क्या होता था गिफ्ट्स बहुत सारे फिल हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, मदर नहीं दे पाती थी उनको गिफ्ट, तो थोड़ी सी होपलेस हो जाती है। देन शी रिमेम्बर्ड हर मदर्स प्रॉमिस, और सडन उसे याद आता है अपनी मदर का प्रॉमिस किया हुआ, एंड स्लीपिंग हर हैंड अंडर हर पिलो ड्रू आउट अ लिटिल क्रिम्सन कवर्ड बुक, और सडन उसे याद आता है कि मम्मा ने मुझे गिफ्ट के लिए बोला था, और वो अपने पिलो के नीचे अपना हाथ डालती है और वहां से एक रेड कलर की बुक निकालती है। क्रिम्सन कवर्ड मींस अ काइंड ऑफ रेड कलर, क्रिम्सन मींस अ काइंड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर की कवर्ड बुक निकालती है। शी न्यू इट वेरी वेल, उसके बारे में अच्छे से जानती है, फॉर इट वाज दैट ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोरी ऑफ द बेस्ट लाइफ एवर लिव्ड, एंड जो फेल्ट दैट इट वाज अ ट्रू गाइड बुक फॉर एनी पिलग्रिम गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यानी जो को पता था ये बुक किसके लिए है? पिलग्रिम के लिए। हु इज पिलग्रिम हियर? अ पर्सन हु गोज ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू अ होली प्लेस। इन हिंदी वी कैन से तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनके लिए अच्छी गाइड बुक है। गाइड मींस अ वे टू फॉलो, एक ऐसा अच्छा तरीका जो जिसे हम देखकर फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो द गाइड बुक यानी एक अच्छी तरीके, एक अच्छी गाइड बुक थी किसके लिए? पिलग्रिम के लिए, और जो को ऐसी स्टोरीज बहुत ही पसंद। देन शी वो मेक विद अ मेरी क्रिसमस। ओके, आफ्टर दैट अब जो क्या करती है उसे तो गिफ्ट मिल जाता है, अब वो किसको उठाती है? अपनी सेकंड सिस्टर को, मैग, जिसका नेम क्या होता है? मैग। एंड विद द विश मेरी क्रिसमस, यानी उसे विश करती है मैरी क्रिसमस, एंड बेड हर सी व्हाट वाज अंडर हर पिलो। या बेड मीनिंग इज told someone to do something, यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना, या फिर in other words we can say to told someone to check something, किसी को कुछ चेक करने के लिए कहना। तो उसने अपनी सिस्टर को कहा कि that what she said to her sister that check your pillow under your pillow if there's a book, अगर वहां पर कोई बुक है तो चेक करो। a green covered book appeared, और वहां पर क्या दिखाई देती है उन्हें? ग्रीन कवर। जो के पास जो बुक थी वो कैसी थी? क्रिम्सन मींस रेड कलर बुक, और ये कौन सी मैग के पास जो बुक मिली है वो कैसी है? ग्रीन कवर्ड बुक विद द सेम पिक्चर्स इनसाइड। सेम हियर मीनिंग विद, जैसे कि जो के पास बुक थी सेम पिक्चर्स की बुक किसे मिली थी? मैग को, यानी मदर हैज गिवन देम सेम पिक्चर्स बुक and a few words written by their mother, and mother also wrote some words in that a few words in those books, okay, which made their one present very precious in their eyes. Their precious meaning is important. जैसे कि आपको सबको पता है मम्मा और पापा हमें कोई गिफ्ट देते हैं तो हमें वो सबसे ज्यादा प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट लगता है, बिकॉज दे हैव गिवन अस गिफ्ट। तो ऐसा ही उन दोनों को लगा, क्योंकि वो गिफ्ट किसने दिया था? उनकी मम्मा ने। एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज अ फ्यू वर्ड्स रिटन बाय हरसेल्फ, यानी उसकी मम्मा ने खुद ने वो वर्ड्स लिखे थे, कुछ वर्ड्स उनके लिए लिखे थे। प्रेजेंटली बेथ एंड एमी, अब उसी वक्त बेथ एंड एमी यानी दो अनदर जो सिस्टर है, फोर सिस्टर्स वर देयर, जो एंड मेग ऑलरेडी वोक अप, एंड देन कौन खड़ा होता है? बेथ एंड एमी to rummage and find their little book also. Here rummage meaning is find out something from mixed lot, यानी किसी बहुत सारे mixed lot से कोई चीज निकालना। अब वो क्या ढूंढ रही है? mixed lot से books ढूंढ रही है। One dove color, dove here meaning is grey color, the other blue, और other कैसे कलर की होती है? blue कलर की होती है। And all sat looking at the top at and talking about them, यानी चारों सिस्टर्स बैठ जाती है and talking about of all the books, while the east grew rosy with the coming day, यानी जो east grew rosy means a dark or येलो एंड ऑरेंजिश कलर आ जाता है स्काई में, जब सन आ जाता है तो होता है कलर, तो वैसा ही डे पास होता जा रहा है और वो अपनी बातें स्टार्ट कर रही है। इन स्पाइट ऑल हर स्मॉल वेनिटीज, वेनिटीज मींस काइंड ऑफ प्राउड,
यानी हर इन स्पाइट ऑफ इसके अलावा ऑफ हर स्मॉल वेनिटीज, यानी अब किसके बारे में बात हो रही है? मार्गरेट के बारे में बात हो रही है। Who's Margaret here? Don't be confused. Meg is Margaret. ओके, मार्गरेट का ही शॉर्ट नेम क्या है? मैग है। तो मैग को एक प्राउड होना चाहिए, लेकिन प्राउड के अलावा हैड अ स्वीट एंड पायस नेचर। उसका नेचर कैसा होता है? स्वीट एंड पायस होता है। तो स्टोरी में क्या होता है? मैग वाज द गर्ल who was very beautiful and pious by her nature. Pious means religious, which unconsciously influenced her sister, जो कि उसकी सिस्टर को अफेक्ट करता था, उसके पास लेकर जाता था। ओके, स्पेशली जो, और सबसे ज्यादा अटैच्ड कौन था? जो थी। who loved her very tenderly. Tenderly means softly. A soft corner for Meg, कि मैग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था किसके पास? जो के पास। एंड ओबेड हर बिकॉज हर एडवाइस वाज सो जेंटली गिवन, और हमेशा उसकी बात जो मैग कहती थी वही जो करती थी, क्योंकि उसकी एडवाइस क्या थी? हमेशा जेंटल होती थी, अच्छी होती थी, यूजफुल होती थी। Here you can see obeyed. Obeyed is the second form of obey, and the meaning of obey is to do what you are told. Told to do, कि ऐसा कुछ करना जो आपको कहा गया हो। गर्ल्स said Meg seriously, यानी मैग क्या कहती है? गर्ल्स अपनी सिस्टर्स को कहती है, मदर वांट्स अस टू रीड एंड लव एंड माइंड दीज बुक्स, यानी मम्मा ने हमें क्या कहा है? इन बुक को हम पढ़ें और प्यार से इसको संभाल कर अपने पास रखें। एंड वी मस्ट बिगिन इट, और अभी हमें इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। Who is saying this? Meg, because Meg was the intelligent girl and who give them instruction to read the book. We used to be faithful about it. हमें इसके लिए faithful होना चाहिए. But since father went away, जैसा कि पापा अभी गए हुए हैं, कहाँ गए हुए? वॉर पर, है ना? And all this war trouble unsettled us. जितने भी वॉर से रिलेटेड ट्रबल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है और हमें अनसेटल कर चुके, यानी जो हम पहले वर्क करते थे वो अब हम नहीं करते। We have neglected means ignored or rejected many things. हमने कई चीजों को इग्नोर कर दिया है। You can do as you please. मैं क्या कह रही है? अब जैसा मैंने तो आपको समझा दिया है, पर अब आपको जैसा करना है, you can do. But I shall keep my book on the table here. लेकिन मैं मेरी बुक को मेरे पास ही रखूंगी on the table with me. And read a little, और थोड़ा थोड़ा every morning, जैसे ही मैं उठूंगी मैं इसे पढ़ूंगी। And read a little every morning as soon as I wake, जैसे ही मैं खड़ी होंगी मैं इसे पढ़ूंगी। For I know it will do me good and help me through the day, और मुझे पता है कि ये बुक मेरे लिए अच्छी होगी और मेरे डे को निकालने के लिए बहुत इजी रहेगी कि मुझे मेरा डे कैसे पास करना है। ओके, डे मींस दिन। Then she opened her new book and began to read. अब वो क्या करती है? अपनी बुक को ओपन करती है एंड स्टार्ट कर देती है रीड करना। जो put her arm round her and leaning cheek to cheek read also. अब जो क्या करती है? leaning means to move top part of body. ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी को भी मूव करते हैं और हमारी हेड को भी मूव करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। रीड ऑल्सो, एंड वो भी स्टार्ट कर देती है रीडिंग विद अ क्वाइट एक्सप्रेशन। सो सेल्डम, सेल्डम मीनिंग हियर रेयरली, यानी कभी कभी। सीन ऑन हर रेस्टलेस फेस, जो कि कभी कभी आता है, टायरलेस और काम फेस, यानी दोनों सिस्टर जैसा मैग करेगी वैसा ही जो करेगी। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैग की बातें हमेशा जो मानती थी, तो जैसे मैग ने स्टार्ट किया पढ़ना, जो ने भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। हाउ गुड मैग इज, कम एमी लेट्स डू एज दे डू, यानी मैग कितना अच्छा पढ़ रही है, एमी आप भी आओ और हमारे जैसा करो। आई विल हेल्प यू विद द हार्ड वर्ड्स, मैं आपको बताऊंगी जो जो इस बुक में हार्ड वर्ड्स है। एंड दे विल एक्सप्लेन थिंग्स इफ वी डोंट अंडरस्टैंड, विस्पर्ड बैक। बैक ने क्या कहा कि हाँ चलो हम भी पढ़ते हैं और हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, मैग हमें एक्सप्लेन कर देगी। Here whispered means say something quietly in someone's ear, यानी किसी के कानों में धीरे धीरे कहना। Very much impressed by the pretty book and her sisters' examples, यानी जो मैग ने और जो ने उन्हें बताया कि आप पढ़ो इन बुक्स को, तो उन्हें भी अच्छा लगा। कि नहीं, एमी और बेथ को भी पढ़ा, यानी 4 सिस्टर है, they all were started reading the book. Where is mother? asked Meg. Meg ने पूछा मम्मा कहाँ है? As she and Joe leaned down to thank her for their gifts, यानी जैसा कि जो और है ना, जो चाहती थी अपनी मम्मा को थैंक्स बोलना, because she has given a very nice gift which was book.
हाफ एन आवर लेटर, यानी आधे घंटे बाद में उन्हें याद आती है अपनी मम्मा की कि मम्मा कहाँ है, हमें उनसे मिलना चाहिए. गुडनेस ओनली नीड्स some poor creature come a begging and your ma is here for mother went straight off to see what was needed. Yani creator mean a play of the word creature. It is a word only. Okay, क्रिएचर से वर्ड बना है क्रिएटर. पुअर क्रिएचर यानी कोई पुअर फैमिली या फिर पुअर लोग नीचे आए हुए हैं बैग करने के लिए, बैगिंग के लिए, तो मम्मा उनको देखने के लिए गई है कि व्हाट दे वांट, उन्हें क्या चाहिए, मम्मा उन्हें कुछ देने गई है. देयर नेवर वाज सच अ वुमन फॉर गिवन अवे विटल्स एंड ड्रिंक्स, क्लोथ्स एंड फीडिंग. ओके, ये मम्मा क्या देने गई है उन लोगों को कि जिनके पास कोई खाने पीने के लिए सामान नहीं है, तो मम्मा ऐसे लोगों को नीचे गई है सामान देने के लिए. फीडिंग समथिंग स्वीटर, कोई मिठाई वगैरह से रिलेटेड हो सकता है. फीडिंग समथिंग स्वीटर. रिप्लाइड हैना. अब यहाँ हैना कौन है? आई हैव टोल्ड यू दैट हैना वाज द सर्वेंट ऑफ दिस फैमिली who had lived with the family since Meg was born. जब से मैग पैदा हुई थी, हैना इसी फैमिली में रह रही थी. ओके, हैना वाज द सर्वेंट. तो वहां कौन थे, कौन लेने आया था सामान? हैना, who was very poor and was considered by them all the more as a friend than a servant. यानी मैंने जैसा आपको बताया था, she was considered as a फ्रेंड. उसे क्या समझ में आता था कि फैमिली उसको किस तरीके से ट्रीट करती थी कि जैसा कि वो यहाँ की ही फैमिली मेंबर हो. ओके, देन व्हाट हैना डिड, सी ओवर हियर. Next we can see the story. She will be back soon. अब वो थोड़ी ही देर बाद में आएगी. कौन? मम्मा. कौन आएगी थोड़ी देर बाद में? मम्मा. किसने बोला? ये मैग बोल रही है कि मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी. अभी वो किसको ट्रीट कर रही है? बेगर्स को. She will be back soon, I think. वो अभी जल्दी ही आ जाएगी. So fry your cake. यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मम्मा ने हमें सरप्राइज दिया है, तो हम भी उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं. They started baking a cake and have everything ready. और अपने आप केक वगैरह सब रेडी रखो, जैसे ही मम्मा आएंगी हम उन्हें सरप्राइज दे देंगे. said Meg. Looking over the presents which were collected in a basket and kept under the sofa. यानी आप भी करते होंगे, किसी को सरप्राइज देना होगा तो उसे छुपा कर रखते हैं कहीं ना कहीं. तो उन्होंने क्या किया था, 4 सिस्टर्स ने उसको किसी बास्केट में कलेक्ट करा हुआ था और उसे किसके नीचे छुपा कर रखा हुआ था? सोफा के नीचे. रेडी टू बी प्रोड्यूस एट द प्रॉपर टाइम. और जैसे ही मदर आएगी वो क्या कर रहे थे, अपने आप को रेडी कर रहे थे कि मम्मा को आते ही हम उन्हें सरप्राइज देंगे. देयर इज मदर. देखिए मम्मा आ गई है. हाइड द बास्केट क्विकली, यानी जल्दी से बास्केट को छुपाए. क्राइड जो जोर से चिल्लाकर बोलती है, मम्मा आ गई है, देखो बास्केट को जल्दी से छुपा दो. एज अ डोर स्लैम. स्लैम का मीन होता है शट समथिंग विद ग्रेट फोर्स, यानी बहुत जल्दी से धक्का देकर डोर को बंद कर देना. एंड स्टेप साउंड्स इन द हॉल. और धीरे धीरे बिल्कुल साउंडेड जो हॉल था उसको बिल्कुल धीरे धीरे उन्होंने शांत कर दिया. जैसे किसी को सरप्राइज देते होता है, पता ही नहीं चलता कि कौन आने वाला है, कौन यहाँ पर है, नहीं पता चलता. ऐसा ही उन्होंने किया. अनदर बैंग ऑफ द स्ट्रीट डोर. अब सडन क्या होता है, एक और बैंग होता है स्ट्रीट डोर से. सेंड द बास्केट अंडर द सोफा. अब यानी उन्होंने क्या किया, सोफा के नीचे जो बास्केट था उसको निकाला. एंड द गर्ल्स टू द टेबल ईगर फॉर ब्रेकफास्ट. और ईगर मींस टू डू समथिंग एज मच एज यू कैन फास्ट. टू डू समथिंग फास्ट एज यू कैन. इतना जल्दी कुछ ना कुछ करना. यानी उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए. वो सब केक भी बेक कर लिया था, गिफ्ट्स भी रेडी थे, सब कुछ रेडी था, बस मम्मा को वेट कर रहे थे. मैरी क्रिसमस मामी, यानी उन्होंने अपनी मम्मा को विश किया. थैंक यू फॉर आवर बुक्स. हमारी बुक्स के लिए थैंक यू. वी रेड सम. हमने कुछ पढ़ी है उनमें से. एंड मीन टू. और बहुत ही अच्छी लगी और सोच रहे हैं अब उसे हम डेली पढ़े, एवरी डे. दे क्राइड इन कोरस. यानी उन्होंने कोरस, उन्होंने बहुत तेज साउंड में चिल्लाकर बोला. कोरस मीन होता है टू सिंग समथिंग टुगेदर. यानी चारों जो सिस्टर थी, चारों ने पहले मम्मा को मेरी क्रिसमस विश किया और साथ ही साथ उन्होंने बुक के लिए भी उन्हें थैंक यू. Merry Christmas, little daughters. I am glad you began at once and hope you will keep on. यानी मम्मा भी अब उन्हें विश कर रही है मैरी क्रिसमस. आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. दैट यू हैव ऑलरेडी बिगिन द बुक, स्टार्टेड रीडिंग द बुक, कि आपने बुक्स
पढ़ना स्टार्ट कर दिए एंड होप यू विल कीप ऑन एंड आई होप दैट यू विल कीप ऑन रीडिंग इट. ओके, कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे आगे भी पढ़ो. बट आई वांट टू से वन वर्ड बिफोर वी सिट डाउन. ब्रेकफास्ट के लिए बैठने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ या फिर कुछ बताना चाहती हूँ. एज मदर सेड, नॉट फार अवे फ्रॉम हियर लाइज अ पुअर वुमन. यानी हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक पुअर फैमिली या पुअर वुमन रहती है विद अ लिटिल न्यू बॉर्न बेबी. यानी एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी है उसके और वो हमारे घर से थोड़ी ही दूर रहती है. 6 children are huddled into one bag to keep from freezing. Freezing का मतलब है क्रिसमस कब आता है, विंटर में आता है, तो विंटर की बात चल रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर हडल यानी वन बाय वन, यानी किसी से गैदर्ड, एक दूसरे के साथ. यानी उन्होंने बताया 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं जो एक साथ ही उस बेड पर रहते हैं बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग, ठंड के मारे. अब उनके पास और कोई साधन नहीं है रहने का, और कोई थिंग भी नहीं है. फॉर दे हैव नो फायर, और कोई भी फायर भी नहीं है उनके घर के आसपास. देयर इज नथिंग टू ईट ओवर देयर, और ना ही उनके पास खाने के लिए है. एंड द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी, एक छोटा बच्चा उनके घर से आया था. ओल्डेस्ट बॉय यानी बड़ा बच्चा, केम टू टेल मी दे वर सफरिंग हंगर एंड कोल्ड. यानी वो भूख के मारे सफर कर रहे हैं और उन्हें ठंड भी बहुत लग रही है. माय गर्ल्स, यानी मदर कह रही है अपनी बच्चियों को, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. क्या तुमने जो भी ब्रेकफास्ट रेडी किया है क्या तुम उन्हें देना चाहोगी? They were unusually hungry. अब जैसा कि daughters भी unusually hungry थी, यानी भूखी थी सुबह से, having waited nearly an hour, और बहुत समय से वेट कर रही थी कब मम्मा आए, कब हम हमारा ब्रेकफास्ट खाएं. And for a minute no one spoke. थोड़ी देर के लिए तो सब शांत हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला कि हम दे या नहीं दे. लिटिल बिट कंफ्यूज्ड आल्सो, कंफ्यूज थी कि हमें गिफ्ट देना चाहिए, एज ए गिफ्ट हमारा ब्रेकफास्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए. Only a minute for जो exclaimed impetuously. जो ने थोड़ा सा बोला. Here meaning of impetuously meaning quickly and without thought or care. यानी बिना सोचे समझे, बिना कुछ केयर किए हुए जो ने बोला, I am so glad you came before we begin. मुझे खुशी है, जो बोल रही है अपनी मम्मा को, कि अच्छा हुआ हमने ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं किया, अगर कर लेते तो हम उन्हें कैसे देते. तो I am so glad that you came here before we start. May I go and help carry the thing to the poor little children? Said Beth eagerly. अब eagerly यानी जल्दी से Beth भी बोलती है कि मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं भी चल सकती हूँ, कि मैं भी poor little children के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना चाहती हूँ. I shall take the cream and the muffins. मैं क्या ले जाना चाहूंगी? अब ये कौन बोल रहा है? Added Amy. Amy भी रेडी हो गई, जो ऑलरेडी रेडी थी. उसके बाद बेथ रेडी हो गई और अब कौन रेडी है? एमी. एमी ने कहा मैं क्रीम एंड मफिन्स लेकर जाऊंगी. Heroically giving up the article she most liked. Articles means things. ऐसी things लेकर गई जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी. Meg was already covering the buckwheats. Here meaning of buckwheats to related some things and peeling the bread into one big plate. Peeling means to put thing one on top. Okay? Of other. एक के ऊपर एक ब्रेड रखी उसने और उसने भी रेडी किया अपना बकवीट. I thought you would do it. मुझे लगा कि तुम करोगी. Said Mrs. March. Who is Mrs. March here? Mother. Smiling as if satisfied. और इतनी खुश हो गई जैसा वो चाह रही थी वैसा daughters ने किया. You shall all go and help me. तुम चारों को मेरे साथ चलना चाहिए और मेरी हेल्प करवानी चाहिए. And when we come back, we will have bread and milk for breakfast. और जैसे ही हम वहां से आ जाएंगे, हम हमारे लिए क्या ले आएंगे? Bread and milk. हमारे ब्रेकफास्ट के लिए. एंड मेक इट अप एट डिनर टाइम. और इसे शायद हो सकता है डिनर टाइम तक भी हम रखें. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी पुअर है, लेकिन हमें यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है कि देखो पुअर होने के बाद भी वो किसी और नीडी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और गर्ल्स अपना ब्रेकफास्ट किसी और को दे रहे हैं. आई होप यू ऑल गॉट दिस चैप्टर टिल हियर. Remaining chapter I will be explaining in the next class. Okay class, till then do practice of the word meanings whichever I have given you. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.